Hello students, now today I am going to teach you about a very important topic related to drugs and medication, and this topic is the rights of medication. Okay, so these rights of medication are very important for you to remember. You have to learn all these rights, and there are basically there are many rights of medication. Some people say there are 5 rights of medication, some say seven rights of medication, but according to NABH there are 10 rights of medication. Okay, so these 10 rights of medication are the very important points that we need to keep in mind when we administer any medication to any patient, and these rights help us in preventing the medication errors. Okay, so overall, what happens with the help of these rights, we can prevent the medication errors. Now, the medication errors that we studied in the previous classes. Okay, so here I am going to teach you about these rights. There are 10 rights of medication, as I told you. So these rights, if we list down in one at once, so these rights are such as the right drug, then the right patient, then the right dose, right route, right time and frequency, right documentation, right history and assessment, right drug approach and right to refuse, right drug to drug interaction and evaluation, right education and information. Okay, so these are the 10 rights of drug administration. These rights I will be explaining to you one by one, each right of medication. Okay, so here the first right that states the right drug. Okay, so here in right drug, according to this right, we have to make sure that we have the right drug with us that we are going to administer to any patient. So this drug, for making sure that we have the right drug, what we need to do is we have to read the physician's order. जो प्रिस्क्रिप्शन चार्ट में मेडिकेशन लिखा है उसको आपको चेक करना है, उसको सही से रीड करना है कि क्या नेम लिखा है, और आप उसको मेडिसिन कार्ड में जब लिखते हो तो आप सही नेम कॉपी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. मेडिसिन कार्ड जो है वो एक ऐसा कार्ड है जो आप जब आप मेडिसिन देने के लिए जा रहे होते हो तो ट्रे में आप वो एक कार्ड रखते हो जिसमें आपका ड्रग का नेम, डोज, फ्रीक्वेंसी, इट्स रूट, इट्स एक्शन, ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है. उसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा होता है कि जो पेशेंट है जिसके लिए आप वो मेडिसिन दे रहे हो उसके बारे में भी लिखा. दैट ऑल्सो यू राइट ओवर देयर द पेशेंट्स नेम, पेशेंट्स एज, sex of the patient, then the diagnosis of the patient, the complaints of the patient. These things are there in the medicine card. So here then you have to read the physician's orders to make sure that you have the correct name of the drug. Then अगर पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन चार्ट है जिसमें फिजिशियन ने लिखा है मेडिसिन, अगर वो क्लियर नहीं है, यू हैव टू क्लैरिफाई विद द फिजिशियन और विद एनी ऑफ द सीनियर्स कि आप वो क्या लिखा है, सो दैट आप कोई मिस्टेक ना करो. देन आप जब भी मेडिसिन कार्ड में कॉपी कर रहे हो नेम, तो आपको ध्यान रखना है कि वो सही तरह से आप कॉपी करो. कभी कभी कुछ नेम्स जो होते हैं ड्रग्स के वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं. ओके, सो उन कंडीशंस में आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी ड्रग अगर जैसे सेम नेम वाली है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिफाई आपको हमेशा करना है. ठीक है, मे बी आपके पेशेंट के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की डोब्यूटामाइन, आपको सुनाई दिया डोपामाइन. ओके, इट्स साउंड सिमिलर बट इट इज नॉट द सेम ड्रग. ओके, सो आपको क्या करना है, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्लैरिफाई करना है कि आपने जो सुना क्या वही सुना, क्या आपने सही सुना या नहीं सुना. देन सिलेक्ट जब आप करते हो, कबर्ड से मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है आप उसके लेबल को अच्छी तरह से देखो. पेशेंट की जो भी मेडिसिन होते हैं उनके ऊपर एक लेबल होता है. ओके, सो वो जो लेबल है उस पर आप जो ड्रग का नेम है या जो कुछ भी उसमें डिटेल्स लिखी है वो आपको चेक करना है कि वो सही है या नहीं है. एक्सपायरी डेट चेक करनी है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपायरी डेट चेक करनी है, ड्रग का नेम चेक करना है, डोजेज चेक करनी है. ठीक है, रूट चेक करना है कि वो किस रूट से दिया जाना है मेडिसिन, उसकी फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में है, टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं या ऑइंटमेंट है, क्या है. ठीक है, देन देर आर 3 चेक्स ओवर हियर जो आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी आप मेडिसिन दे रहे हो. जैसे 10 राइट्स है वैसे 3 चेक्स भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज 3 चेक्स आर व्हेन यू जब आप मेडिसिन चेक कर रहे हो तो आप कब चेक करोगे उसके बारे में 3 चेक है. सो फर्स्ट इज बिफोर टेकिंग द मेडिसिन आप लेने से पहले ही चेक करोगे. उसके बाद है बिफोर गिविंग द मेडिकेशन टू द पेशेंट को वो मेडिसिन देने से पहले चेक करोगे.
ठीक है, या प्रिपेयर करने से पहले या मेजर करने से पहले, ठीक है, तब आप चेक करोगे। उसके बाद जब आपने पेशेंट को दे दिया है, अब आप जब वापस रखने के लिए जा रहे हो तब भी चेक करना है कि आपने सही मेडिकेशन दिया है या नहीं दिया है। सो क्या क्या है, बिफोर टेकिंग द मेडिसिन फ्रॉम द शेल्फ, देन बिफोर मेजरिंग इट और प्रिपेयरिंग इट, then when returning the container to the shelf and before removing the hand from the container, मतलब जब आप रखने जा रहे हो पर अभी रखा नहीं है तब, ठीक है। तो ये जो है ये 3 चेक्स हैं मेडिसिन के। देन कलर, जो भी मेडिसिन का कलर है, उसकी स्मेल है, ओडर या उसकी कंसिस्टेंसी है, ये भी आपको चेक करनी है कि जो जैसी वो होनी चाहिए वैसी है या नहीं है। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लगता है, कुछ भी अबनॉर्मल लगता है, तो आप वो मेडिसिन नहीं दे सकते। ओके, देन मेडिसिन कभी भी जब आप दे रहे हो मेडिसिन, तो आपका जो मेडिसिन के ऊपर लेबल है वो क्लियरली होना चाहिए, तभी आप दोगे। अगर उसमें कभी भी कुछ भी कटा हुआ है, कुछ रब्ड है, जब आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली, तो आप वो मेडिसिन नहीं दे सकते। देन हमेशा जब भी आप मेडिसिन दे रहे हो तो पेशेंट की मेडिसिन के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, बाकी चीज़ों में नहीं होना चाहिए। सो आपको अवॉइड करना है कभी किसी से बात करना, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना, ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि आपका ध्यान उस टाइम सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के ऊपर होना चाहिए। देन बी फेमिलियर विद द ट्रेड नेम्स, जो भी ट्रेड नेम्स हैं मेडिसिन के, उनके बारे में भी आपको फेमिलियर होना चाहिए, क्योंकि एक ड्रग है जिसका जेनेरिक नेम है फॉर एग्जाम्पल रैनिटिडिन, ओके। अब वो अलग अलग ट्रेड नेम्स के साथ आता है, हिस्टैक हो गया, रैनटैक हो गया। अब डॉक्टर ने लिखा है रैनटैक, आपको वो दिख रहा है हिस्टैक के फॉर्म में पेशेंट के पास, अब आप सोच रहे हो कि ये मेडिसिन में नहीं दे सकती क्योंकि डॉक्टर ने तो रैनटैक लिखी है और हिस्टैक तो वो है ही नहीं, ओके। सो बट क्या है, हिस्टैक भी वही है जो रैनटैक है, क्योंकि उसका जेनेरिक नेम दोनों का सेम है, रैनिटिडिन, ओके। सो आपको वो मेडिसिन देनी है, पर आपको पता ही नहीं है कि उसका ट्रेड नेम ये भी है, इसलिए आप नहीं दे रहे हो, बट उससे क्या होगा, पेशेंट का लॉस होगा, ओके। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आपको फेमिलियर होना है पेशेंट के अलग अलग मेडिसिन के ट्रेड नेम के साथ। कभी भी कोई डाउट होता है तो यू हैव टू क्लैरिफाई विद योर सीनियर्स, विद द डॉक्टर, किसी से भी पूछ सकते हैं। कभी भी पेशेंट, अगर आपको पेशेंट के बारे में मेडिसिन आपको बोली जा रही है, तो वर्बल ऑर्डर आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, ओके। डॉक्टर्स कभी भी अक्सर होता है कि अगर टाइम नहीं है तो कोशिश करते हैं वर्बली बोल दिया कि आप ये मेडिसिन दे देना सिस्टर, और आप देने के लिए जा रहे हो, बट आप कोशिश करो कि अनलेस एंड अनटिल इट इज एन इमरजेंसी, तब तक आप वो वर्बल ऑर्डर नहीं लोगे, ओके। कोई भी मेडिसिन है वो लिखा होना चाहिए तभी आप उसको दोगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट उसमें उस कंडीशन में आपके अगेंस्ट केस भी हो सकता है, ओके। एंड हमेशा आइडेंटिफाई करना है मेडिसिन देने से पहले पेशेंट को, ओके। मेडिसिन देने से पहले हमेशा पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि आप जो मेडिसिन ले जा रहे हो उसी पेशेंट के लिए है या नहीं है, ओके। वो पेशेंट जो आपके सामने है वही वो पेशेंट है या नहीं है, हर चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। एंड कभी भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को जो आप मेडिसिन देने जा रहे हो सकता है आप 2-3 दिन से वो मेडिसिन दे रहे हो, तो आपको लग रहा हो वो मेडिसिन देनी ही देनी है, बट हो सकता है कि डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब करना बंद कर दिया या डिसकंटिन्यू कर दिया या स्टॉप कर दिया, तो आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सो यार क्या है मेनली कि आपके पास सही मेडिसिन है या नहीं है, सही फॉर्म में है या नहीं है। लाइक आपको डॉक्टर ने बोला टैब देने के लिए, आपको मिल रही है पाउडर फॉर्म मिल रहा है या ट्यूब मिल रहा है या सिरप मिल रही है, तो वो आप नहीं दे सकते, ठीक है। आपको अगर जो बोला है जिस फॉर्म में वही फॉर्म में देना है। लुक अलाइक या साउंड अलाइक ड्रग्स होते हैं। लुक अलाइक मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, साउंड अलाइक मतलब जो एक जैसे सुनाई देता है। सुनाई देने में डोपामाइन हो गया, ठीक है। कुछ और मेडिसिन जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि नेबुलाइजेशन के लिए हम देते हैं डुओलिन और ब्यूटाकॉन, देखने में सिमिलर लगते हैं, ओके, पर आपको देखना है अच्छे से कि कौन सा मेडिसिन देना, ओके। देन अदर थिंग्स आर देयर, जैसे कि कुछ मेडिसिन होते हैं जिसमें एरर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि ध्यान से सुनना है, क्लियर करना है कि डॉक्टर का मतलब क्या था, कौन सी मेडिसिन देना का ऑर्डर है। दैट इज अबाउट राइट ड्रग। देन यू हैव द अनदर राइट, दैट इज राइट पेशेंट, ओके। सो राइट पेशेंट का मतलब है यहाँ पर कि आपके पास सही पेशेंट है या नहीं है मेडिसिन देने के लिए। सो यार पेशेंट के ऑर्डर को अच्छे से रीड करना है। पेशेंट जो भी डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो किस पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया है वो आपको देखना है, नाम चेक करना है, पेशेंट का नेम क्लाइंट के चार्ट पर चेक करना है, मेडिसिन कार्ड पर भी चेक करना है। देन पेशेंट से बोलना है कि आपका नाम क्या है, एंड दे विल कॉल आउट देयर नेम।
आप भी रिपीट करोगे कि आपका नाम यही है, ओके, सो दे विल रिस्पॉन्ड टू यू. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर पेशेंट, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट के नॉट हियर, डेफ है या सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते या आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो उस टाइम में आपको किस तरह से वेरीफाई करना है वो आपको देखना है. अगर आपको आसपास में कोई ऐसा दिखता है जो पेशेंट को जानता है, बाय स्टैंडर्स हैं, सो उनसे आप क्लैरिफाई कर सकते हो. ओके, सो दैट इज अबाउट राइट पेशेंट. देन यू हैव द थर्ड वन इज राइट डोज. सो राइट डोज का मतलब है कि आपके पास सही डोज ड्रग की है या नहीं है, आप जो मेडिसिन देने जा रहे हो वो सही डोज में है या नहीं है. तो यहाँ पर आपको मेडिसिन शीट में देखना है कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितनी डोज देनी है और मेडिसिन कार्ड में आपने कितनी डोज लिखी है. देन आपको पता होना चाहिए एडल्ट डोज क्या होती है, पीडियाट्रिक डोज क्या होती है. एडल्ट डोज मतलब एडल्ट के लिए जो देंगे, पीडियाट्रिक डोज मतलब बच्चों के लिए जो देंगे. ठीक है, तो एडल्ट डोज एंड द पीडियाट्रिक डोज दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो एडल्ट डोज के अकॉर्डिंग हम पीडियाट्रिक को नहीं दे सकते, पीडियाट्रिक पेशेंट को हम मेडिसिन नहीं दे सकते. ओके, सो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. देन पेशेंट के ऑर्डर्स जो है मेडिकेशन ऑर्डर, उसमें देखना है कि डोज कितनी देने की ज़रूरत है. पेशेंट की एज और वेट, ये दो चीज़ें होती है जो हम डोज में ध्यान रखते हैं, एज और वेट. तो इसको ध्यान में रखते हुए देखना है कि अगर पेशेंट की एज कुछ पर्टिकुलर है और आपको अगर पता है कि इस एज के लिए हम इस मेडिसिन की इस डोज से ज़्यादा नहीं देते हैं, तो अगर आप डॉक्टर ने गलती से लिख दिया है या कुछ भी फाइल में है, तो आप उसको रीवेरीफाई करो, क्लियर करो कि सच में ये इतना ही देना है या नहीं देना है. ओके, सो इससे क्या हो सकता है कि आप एरर फाइंड आउट कर सकते हो और उसको अवॉइड कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई मेडिसिन का मिनिमम या मैक्सिमम डोज पता है, ठीक है, मतलब कोई मेडिसिन है जिसको आप कम से कम इतना दे सकते हो, इससे कम दोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, मैक्सिमम डोज मतलब कि जितना आप दे सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा दोगे तो वो टॉक्सिक हो सकता है पेशेंट के लिए, वो पॉइजनस हो सकता है पेशेंट के लिए. तो आपको जब ये पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो कि कहीं अगर गलत ऑर्डर में है तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. और फ्रैक्शन ऑफ डोज बहुत सही से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी चेंजेस होने की वजह से पेशेंट के लाइफ डेंजर में हो सकती है. ओके, सो जैसे कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल डोजेज हम अभी डिस्कशन क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में. सो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना होता है डोजेस के बारे में. देन मेजर एक्यूरेटली, सही तरह से मेजर करना है हमेशा. जो जिस तरह से सब जगह पे मेजर करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेजर करना है. जैसे कि हम आउंस ग्लासेस यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करके हम मेजर कर सकते हैं. आउंस ग्लासेस जो होते हैं मतलब आउंसेस में कैलकुलेट करते हैं उसमें. जैसे जो मैंने आपको एब्रीविएशंस या वेट्स एंड मेजर्स की पिक्चर भेजी थी, उसमें आपने देखा होगा आउंस करके लिखा होता है. तो 1 ounce इज इक्वल टू 25 ml. ओके, सो देन नेक्स्ट है आपके पास मेडिसिन कार्ड है या रिटन ऑर्डर है, तो वो आपका रेडी होना चाहिए मेडिसिन प्रिपेयर करने से पहले ही. ओके, मेडिसिन प्रिपेयर करने से पहले ही आपका मेडिसिन कार्ड या जो ऑर्डर है वो आपके पास होना चाहिए. बिना उसके मेडिसिन आप नहीं प्रिपेयर करोगे, क्योंकि अदरवाइज हो सकता है कि आपको वो ना देनी. ठीक है, तो आपके पास मेडिसिन कार्ड होना चाहिए पहले से, तभी आप मेडिसिन प्रिपेयर करोगे. कभी भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. अपने मेक श्योर दैट यू हैव योर माइंड इन योर गिविंग द मेडिकेशन. वहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए. हमेशा अवॉइड करना है कि आप ज़्यादा बातें ना करो किसी से भी उस टाइम. ओके, देन कंसिडर हाउ मेनी टैबलेट्स आर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल आपको 50 mg की कोई मेडिसिन देनी है. 50 mg के लिए आपको कितनी टैबलेट्स देनी होंगी. अब मान लो कि एक टैबलेट जो है वो आपके पास 20 mg की है. ओके, सो 20 mg की अगर आपके पास टैबलेट है और आपको देना है पेशेंट को 50 mg, तो क्या करोगे, 20 mg की एक दोगे, 20 mg की एक और दोगे, 40 mg हुआ. दूसरी जो थर्ड टैबलेट है उसको आधा करोगे. ओके, सो दैट इज हाउ यू विल मेक अप द 50 mg. तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको जो भी रिक्वायर्ड डोज है उसको मीट कराने के लिए कितनी टैबलेट्स या कैप्सूल्स देने की ज़रूरत है. देन एब्रीविएशंस या सिम्बल्स जो मैंने आपको पिक्चर में भेजे थे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग एब्रीविएशंस और सिम्बल्स भी आपको पता होने चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है. सो उसके अकॉर्डिंग फाइल्स में चेक कर सकते हैं. जब भी आप मेडिसिन ग्लास या मेडिसिन कप यूज़ करते हो सिरप देने के लिए या मिक्सिंग करने के लिए जो भी है, तो आपका जो मेडिसिन कप है या मेडिसिन ग्लास है वो ड्राई होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन. देन जो भी आप मेजर कर रहे हो, जब भी आउंस ग्लास यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको हमेशा आई लेवल पे रखोगे. ओके, आई लेवल पे रखने से क्या होगा कि आपको वो सही से दिख सकता है. ओके, अगर आप ऊपर रखोगे तो आपको नीचे से दिखेगा, तब आप गलत देखोगे.
नीचे से ऐसे देखोगे तो भी आपको गलत दिखेगा. सो यू हैव टू बी श्योर. आप कैसे पता चलेगा क्लियरली? जब आप उसको आई लेवल में रखते हो. उसके बाद पेशेंट को हेल्प करना है कि वो सारी मेडिसिन ले ले जो भी उसके लिए ऑर्डर किए गए हैं, राइट. सो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन है उनको आप अच्छी तरह से ले लो. उसके लिए आपको पेशेंट को हेल्प करना है. एंड देन द मेडिसिन शुड बी कैरी टू द क्लाइंट विदाउट स्पिलिंग इट आउट ऑफ द कंटेनर. जो भी मेडिसिन आप पेशेंट को देने जा रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि वो आप बाहर ना गिराओ. ओके, बिकॉज इट मे गेट कंटामिनेटेड. ओके, सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू सी. नेक्स्ट है राइट रूट. सो राइट रूट में यहाँ पर आता है कि आप जो भी आप मेडिसिन देने जा रहे हो वो किस रूट से देना है. मे बी आपके उस कंटेनर पर लिखा है आईवी, ठीक है, तो आप उसको आईएम नहीं दे सकते, इंट्राडर्मल नहीं दे सकते, सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते, ओरल भी नहीं दे सकते, डेफिनेटली नहीं. ठीक है, सो आपको देखना है कि जो आप रूट यूज कर रहे हो वो वही है जो प्रिस्क्राइब्ड है या नहीं है, और जो आपके पास ड्रग है वो आप उस रूट से दे सकते हो या नहीं दे सकते हो. सो यू हैव टू सी कि रूट क्या है. जो ऑर्डर में है आईएम लिखा है डॉक्टर ने या आईवी लिखा है, किस तरह से लिखा है वो रूट आपको देखना है. सो हियर फॉर दिस क्या करना है आपको, फिजिशियन का जो ऑर्डर है, डॉक्टर्स ऑर्डर, उसमें आपको चेक करना है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या दिया गया है. देन मेडिसिन को उसी के अकॉर्डिंग डाइल्यूट करना है जितना आपको रिक्वायरमेंट है. ठीक है, देन आपको फाइंड ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस तरीके से दी जाती है. ठीक है, तो आप क्लियर हो सकते हो. एंड कभी अगर कुछ हो सकता है गलती से लिख दिया है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो. एब्रीविएशंस पता होने चाहिए. जैसे इंट्रामस्कुलर है तो उसके लिए हम लिखते हैं आईएम, पर ओरल है तो या ओरली देना है तो उसके लिए लिखते हैं पीओ. ओके, इंट्रावीनस है तो आईवी लिखते हैं. तो ये आपको एब्रीविएशंस पता होने चाहिए. पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है सही तरह से. जब तक मेडिसिन पेशेंट ना ले ले तब तक आपको पेशेंट के साथ रुकना है. ओके, मेडिसिन छोड़ करके पेशेंट से दूर नहीं जाना है कभी भी. ठीक है, वो हो सकता है गिर जाए या कुछ भी हो सकता है, कंटामिनेट हो. तो मेडिसिन अगर आपने पेशेंट के पास रखी हो तो आपको पेशेंट के पास रहना है जब तक वो ले नहीं लगा. कोई भी एरर अगर आपसे हो जाता है, गलती से आपने आईवी की जगह आईएम दे दिया या आईएम की जगह आईवी दे दिया, तो उस एरर को आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है. ओके, ताकि तुरंत कोई एक्शन लिया जा सके और पेशेंट की लाइफ वी कैन सेव. ओके, सो दिस इज अबाउट राइट रूट. देन वी हैव राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी. जब भी आप पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप सही टाइम पर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो. ओके, मे बी द पेशेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अ ड्रग टू गिव 3 times a day, तो लिखा होगा टीडीएस या टीआईडी जो एब्रिविएशंस में है. ठीक है, तो टीआईडी है या टीडीएस है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको देना है. अब उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको टाइम डिवाइड करना है. सुबह 8 बजे, उसके बाद मे बी 2 बजे, उसके बाद फिर इवनिंग में 8 बजे. ओके, सो आपको ये टाइम डिवाइड करना है कि किस तरह से आप वो मेडिसिन को उसी टाइम में दोगे. अगर 2 बार देना है तो 12 आवर्स के डिफरेंस में दे सकते हैं. ओके, सो लाइक दैट आपको देखना है कि राइट टाइम पर दो और राइट फ्रीक्वेंसी में दो. अगर डॉक्टर ने आपको बोला है 8 बजे मेडिसिन देना है तो 8 बजे ही देना है, 10 बजे नहीं देना है. ओके, सो चेक दी ऑर्डर. डॉक्टर के ऑर्डर को देखना है कि कब उस मेडिसिन को देना है और कब लास्ट टाइम दिया ये भी चेक करना है. ठीक है, ताकि वो डिफरेंस जो गैप है वो सही से मेंटेन हो सके. पेशेंट के ऑर्डर को चेक करना है. हॉस्पिटल की रूटीन्स क्या है कि हम मेडिसिन को इंटरवल कितना रखते हैं वो देखना है. ब्लड ये भी देखना है कि ब्लड में कितना लेवल है मेडिसिन का, उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं. और जो भी एब्रीविएशंस है बीडी, टीडीएस, ओडी, Q2H, ये सब ध्यान में रखना है. और कभी भी जब भी जो भी टाइम दिया है मेडिसिन का उसके 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में आप मेडिसिन दे सकते हो. ये नहीं कि उसी टाइम पर देना. ठीक है, 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद में आप मेडिसिन दे सकते हो. फूड इनटेक से रिलेटेड अगर है तो या तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग देना. हो सकता है डॉक्टर ने लिखा हो कि खाना खाने से पहले वो मेडिसिन देनी, तो वो खाना खाने के बाद नहीं दे सकते. ठीक है, सो लाइक देन कभी कभी कुछ एक्शंस जो मेडिसिन के होते हैं उसके बेसिस पर उसका टाइम डिसाइड किया जाता है. कुछ मेडिसिन जो कि सोने के लिए ही है, फॉर एग्जांपल स्लीपिंग पिल्स हैं, सोने के लिए दे रहे हैं ना, तो वो हम दिन में तो नहीं देंगे, राइट. सो दैट मेडिकेशन वी आर ओनली गोइंग टू गिव बिफोर स्लीपिंग. सो बेड टाइम से जस्ट पहले वो मेडिसिन देंगे ताकि पेशेंट अच्छे से सो सके. या डायरेटिक्स है तो उससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, तो हम रात में नहीं दे सकते क्योंकि उससे क्या होगा, पेशेंट की नींद डिस्टर्ब होगी. सो दैट इज टू बी गिवन इन द मॉर्निंग आवर्स. उसी अकॉर्डिंग क्या है, मेडिसिन के जो एक्शन है उसके बेसिस पर हम जो टाइम है वो डिसाइड होता है मेडिसिन का. उसके बाद हमारे पास है राइट डॉक्यूमेंटेशन. राइट डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे दे रहे हैं, जो रूट दिया या जिस टाइम दिया वो एग्जैक्टली वैसा ही डॉक्यूमेंट करना है.
जो भी रिएक्शन पेशेंट का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो सही तरह से डॉक्यूमेंट करना है. ओके, देन उसके बाद क्या है, हियर देन वी हैव राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट. सो हियर राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट मतलब है कि पेशेंट की अगर कोई हिस्ट्री है एलर्जी से रिलेटेड या कोई ड्रग इंटरेक्शन हुआ है जिसकी मतलब कोई 2 ड्रग दिया जिसकी वजह से कोई रिएक्शन हुआ या खाना खाने के बाद ड्रग लेने से वॉमिटिंग हुई, तो वो चीज़ें हम आपको देखनी है. कोई पर्टिकुलर मेडिसिन को ही अगर हम खाना खाने के बाद लेंगे तो वॉमिटिंग हो सकती है. ऐसा नहीं है कि सब मेडिसिन को खाना खाने के बाद लेंगे तो वॉमिटिंग होगी. ओके, सो यू हैव टू सी कि मे बी कोई पेशेंट को ड्रग सूट नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है वो आपको करेक्टली आपके पास वो हिस्ट्री होनी चाहिए. आप सही तरह से असेसमेंट करना है, दैट इज राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट. देन है राइट ड्रग अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज. सो हर पेशेंट के पास अपना राइट होता है कि वो ड्रग लेने से रिफ्यूज भी कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है. ओके, सो पर आपको क्या करना है उसके लिए आपको पहले पेशेंट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कि क्या क्यों आप वो ड्रग दे रहे हो, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है. एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन नाइसली एंड देन ओनली यू कैन मेक क्या कर सकते हो कि पेशेंट को मतलब पेशेंट की बात आप वो तभी पेशेंट सही डिसीजन ले सकते हैं कि उसको वो ड्रग लेना है या नहीं लेना है. अगर वो रिफ्यूज करते हैं उसके बाद भी तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट और आपको इन्फॉर्म करना है. उसके बाद है राइट ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन एंड इवैल्यूएशन. तो आपको देखना है कि प्रीवियसली कभी कोई खाने से रिलेटेड या कोई मेडिसिन का कोई भी रिएक्शन हुआ है बॉडी में, उसको आपको ध्यान रखना है. अगर कोई बैड रिएक्शन पहले आया है किसी मेडिसिन को लेने से पेशेंट में, तो आपको वो चीज़ नहीं अवॉइड यूज़ करनी है. मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट है उसको भी चेक करना है. तो इवैल्यूएट उसको सही तरह से करना है, पेशेंट को भी इवैल्यूएट अच्छे से करना है. लास्ट है हमारा राइट एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन. सो जो भी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम अच्छी तरह से पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, ये उनका राइट है. ओके, सो सही इन्फॉर्मेशन देना है, सही एजुकेशन देनी है जो भी उस मेडिसिन से रिलेटेड है, और पेशेंट की अच्छी तरह से उनको एजुकेट करना है. सो ये है हमारे राइट्स ऑफ मेडिकेशंस. आई होप यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड. एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे कल संडे को, दैट इज 3 o'clock, एंड इन दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल डोजेस. अगर और भी कुछ किसी को पूछना है सो यू कैन आस्क मी इन दैट क्लास. थैंक यू.